Example 14, page 938. Evaluate the line integral x y dy minus y square ds, where c is square cut from the first quadrant. By the lines x is equal to 1 and y is equal to 1. Y is equal to 1. Okay. यहाँ लाइन इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है ओवर दिस. तो देखो, if you will integrate it directly as a line integral, what you have to do? You have to take, so this is the region, x is equal to 1, this is your x is equal to 1, this is your y is equal to 1, this is your first quadrant, xy. So if you want to integrate it directly through line integral, what you have to do? You have to integrate in 4 paths. if आप c लिखेंगे यहाँ पे, तो एक्चुअली यू हैव c1 c2 c3 c4, है ना. इस पूरे पे इंटीग्रेट करना है. व्हाट यू विल टेक? c1 c2 c3 c4. दिस इज द होल रीजन. तो यू विल हैव टू इंटीग्रेट 4 टाइम्स. कैसे करोगे इसको? 4 लाइन सेगमेंट्स हैं आपके पास, OA AB BC CD CO. So it will be quite lengthy, but by Green's theorem we can solve it easily. How? देखो, तो by Green's theorem we can change line integral into double integral and solve easily. We can change the line integral into double integral. How? So 2 forms. देखो, normal form, I told you there are 2 forms. First form, if I am taking normal form, so normal form में this can be right. So here m is xy. Normal form क्या था? m dy plus n dx, है ना. m dy minus n dx है. क्या था normal form? m dy minus n dx. This I can write in the normal form. This can be written as double integral del m over, क्या हो जाता है? क्रॉस del m over del x plus del n over del y dx dy. Okay, so here this xy dy minus y square dx, this I can write double integral del m over del x. तो ये m है आपका, ये n है. So del m over del x is how much? Pi, and plus del n over del y 2y dx dy over r. कितना है? What is r? तो जो region covered by these paths, वो region आपका हो जाएगा the region covered by the smooth curves. ये सब smooth curves हैं आपके, close curve है. So you will be getting 0 to 1 simple close curves, 0 to 1 dy dx dy.
value is 3/2. Okay, so in this way you can solve easily. देखो, so it is one more advantage that the complicated line integrals. सर Yes. सर जो डेल एन ओवर डेल वाई होगा वो -2y होगा ना? नहीं, यहाँ माइनस होता ना फॉर्मूले में, देखो माइनस है तो ये अच्छा, प्लस। ओके। सेकेंड इज टेंजेंशियल, अगर इसे टेंजेंशियल फॉर्म से हम करें, देखो बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट बोथ द फॉर्म आर इक्विवेलेंट। टेंजेंशियल फॉर्म क्या होती थी बताओ? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओवर दिस सी, इट वाज डबल इंटीग्रल आर, क्या था पहले? अब डेल एन होता है, डेल एन ओवर डेल एक्स यहाँ माइनस माइनस डेल अपॉन डेल वाई dx dy. So here you can write, so this equal to डबल इंटीग्रल। इसे अगर इस फॉर्म में लिखे पहले, देखो लाइन इंटीग्रल को, चलो सी बी सिंगल, सो इस क्या एम डी एक्स, तो डी एक्स पहले टर्म लिख लीजिए माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस एक्स वाई डी वाई, so it will become double integral r, so del n over del x y, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस होता है तो यहाँ माइनस है, तो हियर माइनस साइन में लिखो, माइनस del m over del y, तो माइनस माइनस 2y dx dy, so it will become 0 to 1 0 to 1 3y dx dy, same 3/2. Okay, so in this way you can calculate line integral easily. Example 5 is similar problem है। Almost I went through them. Okay, you will try it. You just try all these problems. Green's theorem, as I told you, is important concept. This Green's theorem. Next, we have proof tha, which we have skipped. Is not in the part of the syllabus proof, but if you want to see, you can see the proof. Then we have exercise 16.6. In exercise, you will do problem number 21, 24, page 941, and one more concept. एक concept जो problem में दिया हुआ है, that is good concept. Calculating area with the Green's theorem. Calculating area with Green's theorem. A small concept, important concept. If you want to find area using Green's theorem, तो Green's theorem area formula क्या है? If you have area of R, some region R, so it will be half the curve C, है ना? Area curve C is what? The curve which is enclosing the area. C is the curve which is enclosing the area, whose area you want to find. It will be x dy minus y dx. This is the area formula. ठीक है, इसका स्मॉल प्रूफ है हाउ इट इज कमिंग। तो एरिया ऑफ आर क्या होता है? डबल इंटीग्रल आर डी एक्स डी वाई, ये तो फॉर्मूला है एरिया का। अगर आप एफ एक्स वाई को 1 रख देते हैं तो इट विल गिव यू एरिया। नाउ दिस आई कैन राइट, ये क्या है? कैन आई राइट दिस हाफ प्लस हाफ डी एक्स डी वाई, ये लिख सकता हूँ? बोलिए। यस अब इससे अगर आप कंपेयर करें ग्रीन्स थ्योरम से, है ना, कन्वर्स जाओ आप, तो ये क्या है? डेल एम ओवर डेल एक्स प्लस डेल एन ओवर डेल वाई, तो व्हाट इट विल बी? अब ऐसे अब वापस कर लिखेंगे, नाउ आई एम टेकिंग कन्वर्स, तो आपके पास ये दे रखा है ना, एम डी, ये ले लो, या डेल एन ओवर डेल हाफ
dx dy, तो डेल एन ओवर डेल एक्स या टेंजेंशियल फॉर्म ले लें या नॉर्मल ले लें, तो हाफ dx प्लस हाफ dy, m इज ये ले लें अगर हम, तो डेल एम ओवर डेल एक्स m, ये है हाफ प्लस हाफ। ओके, क्या हुआ, डेल एम ओवर डेल एक्स क्या होता था, m dy, तो m कितना है यहाँ पर, हाउ मच m, जब डेल एम ओवर डेल एक्स इज हाफ, so m is how much, x by 2, x by 2। so it will become x by 2 d, क्या होता था, m dy and minus n dx, so minus n dx, n कितना है, here n del n over del x, del n over del y half, so n is also सर y by 2। y by 2 dx, है ना, फॉर्मूला क्या बन गया ये, हाफ x dy minus y dx, so this is the formula in terms of green x dy minus y dx, this gives the formula of area of any region enclosed by this। इसे सर्कल से एक प्रॉब्लम नंबर 25, using Green's theorem formula find the area, find the area using Green's theorem formula of the circle, of the circle मतलब of the region enclosed by the circle, you can say of the region enclosed by, C is the circle, RT is equal to A cos T I plus A sin T J, and T is lying between 0 to 2 pi। इसे हमें ग्रीन्स थ्योरम से फाइंड करना है। ए cos T, ए रेडियस होती है, अगर ए 1 होता है तो रेडियस 1, तो हमें एरिया निकालना है, मालूम है एरिया क्या होता है, पाई ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सर्किल, यू नो, वी विल फाइंड बाय ग्रीन्स थ्योरम। so here you can see ग्रीन्स थ्योरम के लिए you need x dy, so x is a cos t, so dx will be minus a sin t dt, y is a sin t, so dy will be a cos t dt, so area 1 by 2 0 to 2 pi, ये भी फॉर्मूला निकाला है, एरिया का सी कर्व जो होता था, सी कर्व जो इंटीग्रेट करते हैं टी के टर्म्स में, तो टी 0 2 पाई हो गया, इसलिए चेंज किया, आई हैव चेंज्ड ऑल दिस थिंग टी, हाउ इट विल बी एक्स ए cos t, क्या फॉर्मूला, एक्स dy, एक्स dy a cos t dt माइनस y dx a sin t माइनस a sin t dt, कितना हो गया देखो, cos स्क्वायर t माइनस माइनस प्लस हाफ 0 to 2 pi a स्क्वायर dt, कितना आ गया ये 2 pi a स्क्वायर, so it is pi square, so in this formula, by this formula you can find the areas, 26 27 column up 941 home assignments, okay, इसे आप कर लेंगे सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट द लास्ट इज स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम इज द जनरलाइजेशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम फ्रॉम प्लेन टू सरफेस। ग्रीन्स थ्योरम आपने देखा प्लेन पर था, व्हेन वी हैव अ कर्व इन द प्लेन, सो रीजन इज on the plane, but now if you have a surface, so Stokes theorem is the generalization of Green's theorem from plane to the surface। सर आप जो लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। अभी लिखा नहीं है मैंने कुछ, ये बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी तो ये लिखा है बस। सो स्टोक्स थ्योरम के लिए फर्स्टली वी हैव पैरामीटराइजेशन ऑफ अ सरफेस। तो पैरामीटराइजेशन ऑफ कर्व क्या था, a cos t a sin, it is parameterization of a curve। now suppose you have a surface, you want to write
the parametric equation of a surface. Parameterization of surfaces. तो surface क्या होता है? You know, surface means now you have like this 3 dimensions. So here you have, if you will take, you can see you have two now. I can take two parameters u and v. Surface के parameter क्या होंगे? One parameter will increase. तो surface के parametric equation लिखेंगे तो what I will write? R of u comma v. ठीक है, कर्व की थी r comma t. Now here you have r of u comma v. It will equal to what? F of u vi plus g u vj plus h u v k. Okay, so here it has two parameters u and v. That is a parametric equation of a surface. Okay, जैसे ओके सर। हाँ, तो टू पैरामीटर्स है। जैसे कोण की इक्वेशन है, आपको याद होगा, अगर मैं प्रोडक्ट बनाई थी उधर एक कोण में, ये आपका कोण होता है z इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इसकी अगर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखूंगा तो आई विल टेक टू पैरामीटर्स। देखो ये आर सेम नहीं है, ध्यान रखना, ये आर वेक्टर है, ये आर आपका पोलर वाला आर है। ठीक है, सो दिस विल बी आर cos थीटा आई प्लस आर sin थीटा j प्लस आर के। ओके, ये आर कौन सा है आपका? दिस आर इज दिस पोलर आर है ना, थीटा इज पोलर एंगल। सो दिस इज सरफेस। की कोण क्या होता है आपका? कोण इज अ 3 डायमेंशनल फिगर, यू नो। ये कोण है, इस कोण को आप प्लॉट करेंगे z इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस विल बी अ कोण। सो हियर आई एम राइटिंग इन पोलर फॉर्म, क्योंकि पोलर में लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू आर cos थीटा, y इज इक्वल टू आर sin थीटा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इज tan inverse y upon x. So this represents a cone. So cone is a 3-dimensional figure. So in surface, what simple concept, you have increased one parameter. So two parameters are there. It will be representing a surface. Concept clear है? यस सर। ऐसे ही आप स्फेयर की इक्वेशन लिख सकते हो। स्फेयर को अगर आप लिखेंगे स्फेयर का कोऑर्डिनेट में, तो फाई थीटा में आएगा, ए साइन फाई कॉस थीटा आई, ए साइन फाई साइन थीटा जे, ए कॉस फाई। स्फेयर की इक्वेशन इफ यू विल राइट पैरामीट्रिक फॉर्म में, सो इट विल बी आर फाई थीटा, तो ए साइन फाई कॉस थीटा आई प्लस ए साइन फाई साइन थीटा जे प्लस ए cos phi k. So here are two parameters and phi and theta for here lie, and phi lying between 0 to pi. ये phi का कोऑर्डिनेट में लिखा है ना, तो आपको मालूम है phi 0 to pi होता है और थीटा 0 to 2 pi, spherical coordinates, रो phi थीटा जो हम लिखते थे। तो ये phi होता है 0 to pi with positive z axis. So this is sphere. This is a equation of a sphere in polar form. ये कुछ बेसिक चीजें थ्योरम में यूज करूंगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो सरफेस एरिया अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में, सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज इफ यू हैव अ सरफेस सो इट हैज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया डिफरेंशियल फॉर्म, इसे हम डी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ये इट विल बी मॉड ऑफ आर यू क्रॉस आर वी डी यू डी वी इज द सरफेस एरिया, इट इज डी सिग्मा। तो सरफेस एरिया जो होगा दैट विल बी, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते, दिस इज डी सिग्मा, देन सरफेस एरिया इज व्हाट, डबल इंटीग्रल, सो सरफेस एरिया
डबल इंटीग्रल एस डी सिग्मा, टी सिग्मा। ये आर यू क्रॉस आर वी क्या है? फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू यू, देन विद रिस्पेक्ट टू वी, है ना, एंड देन टेक द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट विल गिव यू सरफेस एरिया। उसका मॉड ले लें, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आर यू का मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू यू। एक एग्जांपल अगर मैं लूं, फाइंड द सरफेस एरिया इनक्लोज बाय कोन। इसका अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है, ये कोन जो लिया था, कोन ये लिखा था आपका हमने आर आर कॉमा थीटा, इट वाज आर कॉस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा जे प्लस आर के, इट वाज द कोन। तो अगर यहाँ पर आर पर रिस्ट्रिक्शन है 0 to 1 theta and 0 to 2 pi. So here if you want to find, so you have to find RR. तो यहाँ पर RR का मतलब क्या हो जाएगा with respect to first. If you want to find RR cross R theta, तो अगर मैं डायरेक्ट क्रॉस लिख दूं क्या होगा, I J K, RR का मतलब with respect to R करेंगे तो how much, cos theta sin theta and 1, क्रॉस दिया है तो इसका डिटरमिनेंट थीटा मींस विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाउ मच, माइनस आर कितना आएगा, साइन थीटा आर कॉस थीटा 0, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मॉड निकाल लेंगे एंड देन यू विल पुट इट हियर और फिर इंटीग्रेट कर देना है, तो सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा मॉड दिस। यहाँ सरफेस एरिया होगा डबल इंटीग्रल मॉड ऑफ आर आर क्रॉस आर थीटा एंड डी आर डी थीटा। Okay, it is the surface area formula. And one more formula is there if you have formula for surface area of an implicit function. ये तो आपके पास ये है, अगर implicit function है, formula for the surface area of an implicit function. Implicit function means, you know, if your function is given f x y z is equal to c, and it is implicit. So its formula will, its surface area के लिए अगर हम निकालेंगे तो डी सिग्मा, तो सरफेस एरिया जो फॉर्मूला होगा इसका डबल इंटीग्रल आर ग्रेडियंट mod of del f upon mod del f dot p and dA. It is the formula for this. ये फॉर्मूला आपका पेज 949 पे गिवन है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, डेरिवेशन दे रखी है इन्होंने वैसे तो वहाँ पे, क्योंकि इन फॉर्मूला को एक हमें यूज करना है। वेयर p इज व्हाट, तो डेल एफ तो जो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन है उसका मॉड ले लें, ग्रेडियंट का मॉड, एंड p विल बी वेयर p इज अ वेक्टर i j k, स्मॉल p अगर वेक्टर p में भी i j और k, कोई भी एक यूनिट वेक्टर होगा विच इज नॉर्मल टू r, जो रीजन आपका होगा उसके जो नॉर्मल होगा दैट इज दिस, एंड दिस del f डॉट p दिस शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन होती है। तो ये भी एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इफ इट इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म। सो वी हैव नाउ स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम आपकी जो है वो 16 पॉइंट, लास्ट टॉपिक जो है वो 16.7 पर है, सीधा 16.7 स्टोक्स थ्योरम, STOKS, स्टोक्स थ्योरम। So Stokes theorem, what I told you, it is generalization Green's theorem to 3 dimension. You can say Stokes theorem, this generalizes Green's theorem to 3 dimensions. 3 dimension, यानी कि सरफेस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरम क्या, थ्योरम का मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, थ्योरम नंबर 6
है ये आपकी पेज 963 पे. What it says, let S be a piecewise smooth oriented surface. Smooth oriented surface. यहाँ पे देखिए सरफेस लिया है ना, नॉट कर्व नहीं है. सरफेस हैविंग अ piecewise smooth boundary curve. बाउंड्री कर्व सी. कोई सरफेस है स्मूथ और इसकी जो बाउंड्रीज है वो भी स्मूथ कर्व्स हैं. जैसे इसकी अगर बाउंड्री लूं, यहाँ पर एक सर्किल है, अगर बनाऊं इस तरीके से एक बाउंड्री है इसकी, स्मूथ बाउंड्री कर्व सी. अगर मैं कह दूं सपोज ये सी है, लेट एफ इज इक्वल टू एम आई प्लस एन जे प्लस पी के. क्योंकि सरफेस पे है तो आई एम टेकिंग वन मोर फैक्टर पी के. दिस इज अ वेक्टर फील्ड. बी अ वेक्टर फील्ड whose components have what continuous first partial derivatives. जो ग्रीन्स थ्योरम में थे सेम वो यहाँ पर भी, बस यहाँ पर एक p के वेक्टर और बढ़ गया. have continuous first partial derivatives. on an open region containing S. on an open region containing S. S आपका जो ये सरफेस था ऊपर है ना, ये सरफेस है, ये इसकी बाउंड्री है. सरफेस आपका 3 डायमेंशन होगा, इट इज द बाउंड्री. ओके. एंड देन the circulation of F around C के अराउंड जो सर्कुलेशन होगा, ये बाउंड्री है, इस सरफेस पे जो सर्कुलेशन हो रहा है मान लो इस तरीके से, F around C in the direction counterclockwise with respect to the surface unit normal vector n. अब सरफेस यूनिट नॉर्मल वेक्टर, इफ यू हैव अ सरफेस, तो इसके अगर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर ले, सपोज इसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो कोई नॉर्मल वेक्टर है, सपोज अगर n ले लूं मैं, n इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस इज एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. क्योंकि सरफेस है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे विद रेस्पेक्ट टू अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर. सरफेस पे एक वेक्टर लेंगे जो नॉर्मल होगा, उसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है, unit normal vector n. This equals the integral of del cross f dot n over s. Okay, ये फॉर्म तो that means ये जो सर्कुलेशन है, that means this circulation c f dot dr, ये तो सर्कुलेशन था, इट विल इक्वल टू डबल इंटीग्रल सरफेस डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी सिग्मा. डी सिग्मा आपका वही जो हमने सरफेस इंटीग्रल निकाला था, ये जो था डी सिग्मा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्टोक्स थ्योरम. ओके, तो इससे हमने जनरलाइज कर दिया ग्रीन्स थ्योरम को. अगर आपको सर्कुलेशन निकालना है सरफेस के लिए, यू हैव अ सरफेस लाइक दिस, इस सरफेस की एक बाउंड्री है सी,
तो इस कर्व पे अगर मुझे सर्कुलेशन निकालना था विच इज हैविंग अ सरफेस, तो इट विल इक्वल टू डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी सिग्मा, है ना, ये आपकी स्टोक्स थ्योरम कहती है। सो हियर यू कैन फाइंड, इस एक प्रॉब्लम है, कैन फाइंड दिस प्रॉब्लम इज एग्जांपल 2, एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिख दिया पूरा 964 पर के इवेल्युएट इसे इवेल्युएट करना है, इसे अगर मैं 1 कह दूं मान लो, इवेल्युएट इक्वेशन 1 फॉर द हेमिस्फीयर, फॉर द हेमिस्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। देखो सर्किल को सेमी सर्किल बोलते हैं, आधा होता है स्फीयर का आधा, सेमी स्फीयर नहीं बोलते, हेमिस्फीयर बोलते हैं ना, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट में। जेड ग्रेटर यस देन सर। इक्वल टू 0। अब जेड ग्रेटर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ऊपर का पार्ट है इस स्फीयर का, सेंटर 0 0 0, रेडियस इज 3 एंड दिस इज जेड ग्रेटर देन, तो इट इज हेमिस्फीयर। और बाउंडिंग इट्स बाउंडिंग सर्किल, बाउंडिंग सर्किल मतलब जो बाउंड्री आ रही है, ये बाउंडिंग सर्किल आपका, दिस इज बाउंडिंग सर्किल। क्या होगा आप देख सकते हैं, जेड को 0 कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बाउंडिंग सर्किल, जेड इज इक्वल टू 0 पे, ये गिवन है। एंड द फील्ड एफ इज गिवन वाई आई माइनस एक्स जे, फील्ड गिवन है वाई आई माइनस एक्स जे। ठीक, तो व्हाट आई विल फाइंड, तो आई विल वेरीफाई, एक्चुअली यहाँ वेरीफाई करना है लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। सो हेयर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, तो पहले मैं डी आर निकालता हूँ। तो डी आर इज हाउ मच, क्योंकि एफ डॉट डी आर, तो डी आर इज हाउ मच, आर गिवन है ये कर्व, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख के डायरेक्ट लिख दूं मैं, है ना। आर तो आपको मालूम है क्या होता है, व्हाट इज आर, 3 रेडियस है तो 3 cos टी आई प्लस 3 sin टी जे, दिस इज योर आर। तो व्हाट इज डी आर, माइनस 3 साइन टी, बुक में आपके इन्होंने थीटा में ले रखा है, थीटा लिख दो चाहे तो, चलो बुक की फॉर्म में चलेंगे तो एक ही बात, एंगल है टी, थीटा में लिख देंगे, तो -3 साइन थीटा, और कितना जाएगा ये डी थीटा आई प्लस 3 cos थीटा डी थीटा जे। एफ इज गिवन वाई आई माइनस एक्स जे, तो वाई आई सेटिस्फाई करा दे, तो वाई इज 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा आई माइनस 3 cos थीटा जे। ओके, ये वाई एफ हो गया। तो एफ डॉट डी आर, so f dot dr you will find it will be coming, इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, है ना, तो it is coming -9 d theta। so your left hand side is what, f dot dr, so that means over the curve c, इस कर्व आपका सर्किल है 0 to 2 pi, f dot dr is -9 d theta, it is coming -18 pi, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। now I will find right hand side of 1। ठीक, so here your f is given, f कितना था देखो, वाई आई माइनस एक्स जे, इसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो योर एफ इज वाई, एन इज माइनस एक्स एंड पी इज 0, है ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एफ कितना होता है, एम आई प्लस एन जे प्लस पी के, तो मुझे डेल क्रॉस एफ निकालना है पहले, कर्ल क्या, डेल क्रॉस एफ क्या था, कर्ल ऑफ एफ, एफ इज गिवन यू बट पी इज 0 है, अगर थर्ड कंपोनेंट होता पी लिख देते, तो डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ क्या था, कर्ल आपको बताया था अगर याद हो, आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड एंड यहाँ क्या था, एम एन पी, है ना। तो इसका ये आपके पास क्या होता था, डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ विल बी व्हाट, डेल पी ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल जेड आई प्लस डेल एम ओवर डेल जेड माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स जे, इसका मल्टीप्लाई करके खोल लिया ऐसे बस, प्लस कर्ल यही तो था आपके पास, कल जो डिस्कस किया था कर्ल, है ना,
इसका kth कंपोनेंट ले लिया था कर्ल का आपका ग्रीन्स थ्योरम के लिए। दिस इज योर कर्ल डेल क्रॉस एफ। तो डेल एम डेल पी ओवर डेल वाई से सॉल्व कर ले, पी गिवन है। तो आफ्टर सॉल्विंग इट इज कमिंग 0 माइनस 0 आई प्लस 0 माइनस 0 जे प्लस माइनस 1 के। तो इट इज कमिंग माइनस 2 के, तो 0 होगा। ठीक, तो डेल क्रॉस एफ तो निकल आया। अब डी सिग्मा, अब हमें क्या निकालना है, डी सिग्मा और निकालना है। एन कंपोनेंट तो पता है हमें, डी सिग्मा। तो डी सिग्मा का फॉर्मूला क्या बताया था आपका, तो एक तो पहले हमें एन निकालना होगा। व्हाट इज एन, एन इज योर आउटवर्ड एन टू द एस। तो एन की वैल्यू होती है डेल एफ क्रॉस मॉड ऑफ डेल एफ, क्योंकि यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। डेल एफ क्या होता है, आउटसाइड। तो दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एन। बाय दिस फॉर्मूला यू विल फाइंड डेल एफ क्रॉस डेल एफ, है ना। तो एफ इज गिवन टू यू, ये डेल एफ क्या है, एफ इज द स्फीयर। तो जब आप डेल एफ करेंगे तो हाउ मच इट विल बी, ये स्मॉल एफ है, ये बाउंडिंग सरफेस है आपके पास। तो इट विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कितना हो गया ये, तो 9 था तो 3, सो यू गॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन 3। ठीक है, ये एन का फॉर्मूला होता है भाई, डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ, उसका ग्रेडियंट। सो डी सिग्मा जो फॉर्मूला था, इट वाज मॉड ऑफ डेल एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल एफ डॉट के इनटू डी है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया सरफेस एरिया का, जो मैंने आपको बताया था, ये वाला। पी आपका आई जे के था, यहाँ पर पी के हो जाएगा क्योंकि सरफेस है आपका। तो सरफेस पे जो के वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, मॉड डेल एफ ओवर दिस, इट इज कमिंग 3 बाई जेड डी ए, है ना। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। सो यू गॉट, सो डेल क्रॉस एफ डॉट एन एंड डी सिग्मा, इट्स वैल्यू इज कमिंग -2 डी ए। तो इसे उठा के हमने फॉर्मूला में रख दिया। तो यू गॉट डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी सिग्मा, ये राइट हैंड साइड था। तो इट इज कमिंग डबल इंटीग्रल लेस देन इक्वल, यहाँ सरफेस होता था तो लेस देन इक्वल टू 9 -2 डी ए। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -18 पाई। ठीक है, सो इट इज द फॉर्मूला विच यू कैन फाइंड एंड वेरीफाई बाय दिस। ये एक दो प्रॉब्लम है, ये आप अपने आप ट्राई करेंगे 3 and 4। ठीक है, इसमें और कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। यू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर complete your assignment and submit your assignment and start preparation for your main viva which is on 20। ठीक है सर। ठीक है ना, कोई भी डाउट है यू Yes. कैन डिस्कस।